Please settle down. Please, please, please don't leave your seats. We have an amazing session as of now. Yeah, पीछे वाले लोग अगर please if you can come little forward and I request you to please keep your mobile phones on silent mode. Yeah, we'll be having with us actor Tushar Kapoor in like 2-3 minutes. So please be seated here and yeah, I'll still request you to please settle down in the front if you can. The backbenchers, मुझे पता है बैंक बेंच में अच्छा लगता है स्कूल में, but if you can come a little forward over here, it'll be good. And please put your mobile phones on silent mode. Yeah. Parenting, it itself is genderless journey of learning altogether. But whenever we hear the word, I request you all to please settle down and respect the session. Okay, so parenting, when we talk about parenting, generally we think of mother. जो इमेज दिमाग में आती है वो हमेशा फीमेल मदर की ही आती है और अगर हम पेरेंट्स को साथ में लाइक वी टॉक देन इट्स इफ वी थिंक अबाउट फादर देन वी ऑलवेज थिंक मदर एंड फादर टुगेदर but today with us we'll be having actor Tushar Kapoor, who is also a producer. You all know him through many movies and also an author. He's not an author, I would say, because he has just penned down his experience of parenthood and what it means to have the possessing a child, to have your own child. Because adoption ही क्यों हम हर बार adoption ही क्यों सोचते हैं, खुद का क्यों नहीं सोचते? There, why we think it as selfishness. So we'll be having him, as well as along with him we'll be having author, best-selling author, as well as one who has started the literary agency, the book bakers from Suhail Mathur, and he has sold over 900 books throughout the world. And along with him, of course, the founder of this Okay, yeah, and along with him, of course, the founder of this literature festival, Dr. Umashankar Yadav. So we'll just need 2 or 3 minutes of yours. Meanwhile, we have prepared a beautiful video of Gujarat tourism. So please have a look of it till we'll have all the dignitaries, actor Tushar Kapoor, Suhail Mathur sir, and Umashankar Yadav on this stage. Dear Diary, I've been to a wonderful place. Have always thought ancient and modern are opposites. I was wrong. Here I've seen the first modern city of 4,000-year-old civilization. I've been to places that are endowed with heritage and preserved by time. I always thought man and wild are opposites. Not really. Here I've had conversations with the king of the jungle. I always thought white is the opposite of colors. Proved false. Here I've seen millions of shades dancing in color white. Strange ones, hit terribly by earthquake, are today inspiring others to live, to celebrate. I always
always thought gods live only in heaven. But here, I heard the sounds of Lord Krishna's flute. I heard the heartthrobs of Goddess Sati. You know what? I saw a place which was attacked hundreds of times by foreign intruders. Still it stands untouched. Even sun god comes to greet good morning to this place. Isn't that a living symbol of faith? I went back in King Ashoka's era. I even stood at the place Parsis entered India. You know who lived here before any human walked on the earth? I have seen that creature in all its glory. I have been to a place where migrated birds come to spend a vacation. I felt kingly at times. I felt crazy at times. I went too deep to explore new world. You know, humans learned to heal before they invented wheels. On my journey, I saw the journey of medical science. I have heard the echoes of bravery that still reverberates among masses. You know, here they celebrate more than 200 festivals a year. I took my taste buds on a journey through flavors and diversified my taste palette. I mean, they have everything. This place has given visionary leaders to the world. Mahatma Gandhi, the soldier of peace and non-violence, who got India her independence. Sardar Patel, who united India after independence. World's tallest statue built in the memory of Iron Man of India. Narendra Modi, who is striving to make developed India. A man pushing forward the development indices in the country with his proactive vision and approach. One of future's smart city and all-round development is taking place in this state. I always thought that the sound of my heartbeat would fade in the crowd until I resonated with 132,000 heartbeats. I have seen something unique here too, like the world's longest river front. It means this state is traditional in looks, but truly modern in thoughts. This place welcomes the world on its doorsteps to do business. I've seen modern splendors sitting atop one another. One can experience the ease of doing business here, as the world is within your reach and accessible anytime. No destination is too far and no dream impossible. Here knowledge is reaching unto the last through most advanced technology. Here the most famous institutions of the country are paving the way of future for the youth. I've seen opportunities. I've seen innovations. I've seen illuminated thoughts of Mahatma being realized. It's not a state. It is a state of mind where all the senses merge. I think I love Gujarat. And you would too.
So come, experience the hospitality of this mesmerizing state. Gujarat awaits you with open arms. મજા આવી ને? Right. Please put your hands together. A very loud applause and welcome the very talented actor Tushar Kapoor, Suhail Mathur sir and Umashankar Yadav on stage. I'm sure you all want to hear him. थोड़ी और तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वेटिंग. तुषार जी, अहमदाबाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सुहेल जी, आपका भी अहमदाबाद में बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया. मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि इनकी जो किताब है बैचलर डैड, अगर आप इसका डेडिकेशन देखेंगे तो इनकी लाइफ और इनकी किताब दोनों इसमें समअप हो जाती है. मैं पढ़ रहा हूँ, फिर तुषार जी से बात करते हैं कि ये इसका क्या मतलब है सिंगल डैड्स सिंगल मॉम्स के लिए. To all single moms and dads, it's twice the work, twice the tears, but it's also twice the hugs and love. The last two words are very important. Tushar ji, please. एक्चुअली ये बैचलर डैड है, तो ये डेडिकेशन ये डेडिकेशन लिखा है इन्होंने. Yes, yes, yes. और डेडिकेशन, फर्स्टली नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. एंड डेडिकेशन की बात करें तो आप बोल रहे हैं कि डेडिकेशन नज़र आती है बुक में. आप ऐसा तो नहीं कि आपको पढ़ने में मेहनत बहुत लगी? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली. जब मैंने ये पढ़ लिया तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल किताब की समझ आ गई कि आप कहना क्या चाहते हैं, लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं कि अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको प्यार भी ज़्यादा मिलेगा. हम पेरेंट्स की बड़ी शिकायत रहती है कि मेरी बच्ची या बच्चा फादर को ज़्यादा प्यार कर रहा है. और क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं फैमिलीज में, आप जाइए कि आपको फादर ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आप फादर को ज़्यादा कर रहे हो या मॉम को कर रहे हो. तो आपको दोनों का प्यार मिल रहा है. और ये किताब इस बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करती है कि आप डबल मेहनत कर रहे हो तो आपको डबल प्यार भी तो मिल रहा है. और प्यार के लिए तो हम सब जीते हैं, किसको प्यार की ज़रूरत नहीं, बताइए आप. लेकिन जहाँ तक उस लाइन का सवाल है, मेरा ये मतलब नहीं था कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आई बिलीव जो मैरिड कपल्स हैं उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी मेरी. मेरा वो मतलब नहीं था कि आई एम डूइंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वर्क. मेरा मतलब ये था इस लाइन के ज़रिए कि ऐसा लग रहा होगा आपको कि इट्स ट्वाइस द वर्क एंड ट्वाइस द हार्ड वर्क, बट इट्स ऑफ कोर्स इट्स वर्थ इट. एंड द लव दैट यू गेट बैक एंड द फुलफिलमेंट जो आप महसूस करते हैं अपने बच्चे के साथ, दैट इज़ more than worth it. Absolutely. So I wanted to say कि जहाँ शादियाँ होती हैं, जहाँ मैरिड कपल्स जो स्टीरियोटिपिकली नॉर्मल फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत मेहनत होती है. कभी कभी द मदर और द फादर, even though they are in a married relationship, one partner of the family is doing all the work. So it's almost like my case, where one person is doing all the work and the effort. So it doesn't make it any easier when there are two. Sometimes one is not doing much. Absolutely. One is just the financial partner of the relationship or the working partner of the relationship. And of course, sometimes both parents are working. Mother and father दोनों काम कर रहे होते, तब उनको टाइम निकालना होता है बच्चे के लिए, इतना कुछ करना पड़ता है, तो it becomes challenging. So it's every family is different. मेरा मतलब ये है कि every family is different. तो मैंने बस वही मतलब कुछ preach करने के लिए किताब नहीं लिखी, यही दिखाना चाहा था कि this has been my journey. I'm not trying to say it's been harder or easier or look how different it is. It's just about a journey that seems a little different, but it's just like any other family. And बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के कि ये कैसे हुआ, क्यों किया. और मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारी इंटरव्यूज़ दिए हैं. जब मैं फिल्मों की प्रमोशंस करता हूँ तो मैं इंटरव्यूज़ देता हूँ इसके बारे में. बट देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. हमेशा मतलब वो बात क्लियरली आती नहीं लोगों के सामने. तो फिर मैं जाता हूँ लोगों के सामने तो वही पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया. सो आई थॉट when Sohail came to me and said that why don't you write a book, I said that's the best way to really tell everyone what my journey about being a bachelor dad is all Correct. is like. Absolutely, and I would like to tell all of you that he was very receptive.
कई बार क्या होता है कि आप किसी के पास कोई आइडिया लेके जाते हैं, एंड एक्चुअली हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था या जो बिगिनिंग थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंड आई यू नो देयर वाज अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ आवर्स, मीतू, एंड शी कनेक्टेड मी विद तुषार, और हम लोग मिले और मैंने उनको ये चीज़ बताई। और अभी इनफैक्ट 2 मिनट पहले भी हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि हमारी जो ये किताब है बैचलर डैड, ये बाकी किताबों से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज even when I was discussing the book with him, the idea was not to create any sort of controversy. हम controversial किताब नहीं create करना चाह रहे थे, हम inspirational किताब create करना चाह रहे थे। और जिस तरह का response इस किताब को मिला है वो बहुत ज़्यादा inspirational है। It's been on the bestseller list and I'm very happy that what we had set out to do, we have achieved that. And ये तभी हो सकता है जब कोई सच्चाई से, ईमानदारी से किताब लिखे। देखिए कोई आम इंसान, आपको ये चीज़ पता होगी that, and I'd want all of you to give a huge round of applause because Tushar is India's first male celebrity to opt for surrogacy, and you know that is something that really deserves an applause because I truly feel that जब कोई आम आदमी खास काम करता है तो वो सेलिब्रिटी बनता है, लेकिन जब सेलिब्रिटी कोई खास काम करता है तो वो आम आदमी से जुड़ जाता है। क्या बात है, बहुत बड़ी क्योंकि वो सबको इंस्पिरेशन देता है, और इस किताब ने बिल्कुल वही किया है। तुषार जी, मेरा सवाल इसी से था जो आपने बात किया। कुछ लोगों का जीवन होता है कि समाज को कुछ रास्ता दिखाने का, कुछ उनको लगता है कि नहीं, हम कोई बात अगर कहना चाहते हैं तो अपने थ्रू ही कहें तो अच्छा है। तो एक तो मैंने आपकी किताब के माध्यम से पढ़ा कि आपको डैड बनना है और वो आपने सोच लिया। दूसरा जो आपने अभी बात किया उससे मुझे ये सवाल आया कि आपका जीवन क्या संदेश देने के लिए बना, आपने ऐसा सोच के कर रहे हैं, शुरू से ऐसे थे, या आगे बाद में आने के बाद को आपको लगा कि नहीं, ये जो टेबू है सिंगल पेरेंट्स का, सिंगल मॉम डैड का, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए जिससे लोग बड़े आजकल ये आपका नाम कहीं भी पूछो एवरीबडी नोज कि। तो इस किताब की जर्नी के माध्यम से आपने एक ऐसा संदेशा दे दिया जिससे कि हम सब लोग, काफ़ी लोग अपनी बातें नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब तुषार कपूर जैसे लोग ये बात कह देते हैं तो हम लोगों के अंदर बड़ा जज्बा आ जाता है, हम लोगों को डिसीजन लेना भी बहुत आसान हो जाता है। तो आपका जीवन ऐसा है क्या? जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे किसी को प्रेरणा देनी है या इंस्पिरेशन देनी है अपनी लाइफ के ज़रिए। आई वॉज नॉट वांटिंग टू बी अ पाथ ब्रेकर। इट्स जस्ट दैट जैसे कि समटाइम्स लाइफ टेक्स स्ट्रेंज टर्न्स एंड थिंग्स गेट डिलेड। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी कभी वी गो विद द फ्लो रिगार्डिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड फैमिली वाज वन थिंग आई नेवर टुक वेरी सीरियसली एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न। वो भी मैंने उसका भी जिक्र किया पूरा बुक में कि जब मैं काम में इतना मसरूफ़ हो गया और मतलब अपने करियर को बनाने में जुट गया तो सोचा ही नहीं कि फैमिली स्टार्ट करने के लिए भी मतलब सोचना पड़ता है। दैट टिल आई रीच माई mid-30s, एंड देन बाय देन आई डिडंट हैव मैरिज इन साइट। आई मीन आई हैड नो आइडिया कि कब शादी होगी, तो लेकिन लेट नहीं होना चाहिए बच्चों को ज़िंदगी में लाने के लिए। आप ज़्यादा अगर आपकी उम्र हो जाती है तो देन आई थिंक द एनर्जी गोज़ डाउन एंड यू नॉट एबल टू लुक आफ्टर देम एंड प्ले विद देम एंड गिव देम देयर योर 100%। तो उसके लिए एक टाइम लिमिट ज़रूर होता है। शादी तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यू कांट स्टार्ट अ फैमिली विद किड्स, द अर्लियर द बेटर। सो इसलिए मैंने फिर क्या हुआ उसके बाद उसके बारे में लिखा मैंने बुक में। ये किताब आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। मैंने जब ये किताब को पढ़ा तो मुझे इतने आश्चर्यजनक, इतने प्रेरणादायक, दुखदाई और सुखदाई इतने प्रसंग हैं इस किताब में कि आप लोगों को इतना मज़ा आएगा। बैचलर डैड को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ऐसे सवाल आए जो आप लोगों ने सुने नहीं होंगे और किसी के बारे में नहीं सुने होंगे। अब तुषार जी से मैं पूछूंगा, लेकिन उसके पहले जो मुझे समझ में आई बातें मैं बता दूं कि एक बार ये अमेरिका से आए। इनकी मॉम सब लोग जानते हैं, शोभा कपूर जी ने इनके लिए रूम ऐसा अरेंज कर दिया। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि कुछ रूम ऐसा है, ऐसा रूम की व्यवस्था कर दो तो इनके मूड बनने लगेगा कि शादी करना चाहिए। अभी शादी के लिए इनको, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट, और इनके रूम को सब डिस्टर्ब मतलब अपने हिसाब से करवा दिया, बहुत अच्छा सजा दिया। लेकिन ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म के इंसान है, साइंटिस्ट जैसे होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर लौट के आए तो इनको इतना गुस्सा आया, इस किताब में वो पूरा प्रसंग लिखा हुआ है, और अपनी मॉम के ऊपर भी बहुत नाराज़ हुए। मॉम आके इनको समझाई कि अच्छा ठीक है, अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसी सारी माएँ मान जाती हैं और बोलते हैं आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। एक ये प्रसंग है, आप इसका भी जवाब देना। 2-3 बातें और हैं मैं जो बता देता हूँ, आप सब लोगों को बहुत आनंद आएगा इस किताब में। ऐसी चीज़ें इन्होंने, क्योंकि ये कैंडिड डिस्कशन है, फ्रैंक डिस्कशन है, इसलिए सारी बातें बताएंगे।
और 2-3 बातें सब कुछ बता देंगे तो फिर बुक कौन लेगा पढ़ने अच्छा के ठीक है, हाँ, आई थिंक दिस इज गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, एक चीज़ केवल बताने वाला हूँ जो आप सबको जाननी चाहिए और किताब से उसका ज़्यादा संबंध नहीं है। तुषार जी, जब आप जा रहे थे तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने, तो फ्लाइट में अचानक आपका प्रकाश झा जी से मुलाकात हो गई। आप बाजू वाली सीट में थे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो बाजू में रहेंगे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इनको बोला, और वो मैं कोट करना चाहता हूँ। Tushar, you are an actor which also clued into a worldly matters like politics, unlike many other people, unlike many other actors in the industry. Unlike is the most important word you should remember. तो ये जो unlike है, इसके बारे में आप बताएंगे प्लीज? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि पूछा मुझसे पहले कि आप कंट्रोवर्सीज में नहीं आते हो इतना, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना मीडिया में मतलब कि बवाल क्रिएट नहीं करते हो। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके पास सक्सेसफुल फिल्में ना होते हुए भी वो अपने आप को न्यूज़ में रखते हैं। सो उन्होंने पूछा कि आप क्यों ऐसा वो करते हो, मतलब कि वाई। सो आई सेड दैट यू नो आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन, एंड मुझे तो मतलब अगर कुछ मैंने गलत कोड भी दे दिया तो सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी कल क्या होने वाला पेपर में सुबह। समटाइम्स आई कांट स्लीप थिंकिंग कि सुबह उठ के कुछ और कुछ होता नहीं है, बट इट्स जस्ट योर नेचर। समटाइम्स वी आर जस्ट यू नो, जब मैं फिल्में प्रमोट करता हूँ तो मैं आई गो ऑल आउट, बट जहाँ तक पब्लिसिटी में ऐसे ही रहने की बात आती है तो आई एम अ लिटिल शाय। सो दैट्स जस्ट माय नेचर, आई एम अ स्कॉर्पियो इंट्रोवर्ट। बट तो वो ऐसी बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे इस सिलसिले में ये कहा था कि यू आर ऑल्सो, यू आर अ फिल्मी, यू आर एन एक्टर, यू आर अ कमर्शियल film actor, but at the same time you're somebody who's very well versed with worldly affairs, and आपकी thinking थोड़ी अलग है, so it's not your personality to you know plan controversies for yourself or try and push your way into the news or just sign films randomly and just be in the news. I think वो आपका nature नहीं है. So he was just talking about my personality as an actor. He was saying that contrary to what you portray on screen, you're a very different kind of a person. But I think you changed little bit after that. I mean, you tried doing something different later on. Just this discussion. After this discussion, then तो of course he advised me that you should read the book. Actually मैं तिरुपति हम लोग गए थे and he happened to be on my flight next to my seat. तो फिर अगले दिन हम दोनों की फ्लाइट्स अलग अलग फ्लाइट्स थी, तिरुपति टू मुंबई, और वो कैंसिल हो गई. सो वी ड्रोव डाउन टुगेदर. ही कॉल्ड मी एंड सर मेरी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो हम लोग चेन्नई ड्राइव करके फ्लाइट ले लेते. सो वी ड्रोव डाउन टुगेदर एंड देन दिस कॉन्वर्सेशन हैपेंड ऑन द कार. फिर उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ अ सिंगल डैड एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू ऑन द फोन फ्रॉम द कार. वो हम लोग हाईवे या कहीं हम लोग 3 घंटे का रास्ता था, हम लोग जा रहे थे, और उन्होंने मुझे बात कराई मुंबई में एक सिंगल मॉम से जिन्होंने वही किया जो मैंने किया. And she had already done it. उनकी 2 साल की बेटी है and she became a single mom through IVF and surrogacy. तो उन्होंने कहा मुंबई में भी इंडिया में भी लोग कर रहे हैं, it's legal, it's and she's a healthy baby and why don't you think about this? So that's how the conversation started. That was in May 2015. I remember. और मैं गया था अपनी एक फिल्म, मेरी फिल्म सेंसर में अटकी हुई थी, मस्तीज़ादे, and I had gone to pray कि मस्तीज़ादे सेंसर हो जाए जल्दी से जल्दी. और I think life took a strange turn after I left the temple. तो कहते हैं ना कि मतलब कि divine intervention. So my title जो chapter है मेरा उस Divine intervention, yes. the title of that chapter is divine intervention because I don't know Prakash Jha very well. हमारी flights cancel हो गई, हम लोग मतलब we carpool together, फिर ये बात शुरू होगी. उन्होंने वहीं से फ़ोन पे बात करा दी एक single mom से, and she told me come to Mumbai, I'll talk to you, we'll meet up. Then I went in Mumbai and then that's why I'm here. Because of that divine intervention. Basically, I would not write the book also. अच्छा सुहेल, आप ये बताइए कि basically ऐसा है, उमा शंकर जी, ऐसा है कि ये तिरुपति गए थे और उसकी जेनेसिस वहाँ हुई, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बालाजी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बालाजी है, यस. 2 चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा. पहली चीज़ ऑन लाइटर नोट, ये बोल रहे थे इन्होंने प्रेरणा नहीं दी है. सही बात है, प्रेरणा एक्चुअली इनकी बहन ने दी है कसौटी जिंदगी के थ्रू. But nonetheless, you know, it's a very important thing that I wanted to bring because इस सेशन से just पहले एक सेशन हो रहा था about how cinema has changed perceptions in society. And मैं प्रसून के साथ बैठा हुआ था वहाँ पर और मैं यही बोल रहा था क्योंकि मेरा सेशन भी था यहाँ पर, तो मैं उनसे ये बोल रहा था कि एक बहुत important मूवी है जिसके बारे में हम शायद बात नहीं कर रहे, और वो थी क्या कूल है हम.
Sohail is a very big fan of Kya Cool Hai, I think. No, I've seen a हमेशा lot मैं of. मिलता, आप मुझसे क्या cool है हम की बात करते हो. So no, I mean, why I'm mentioning it is because, you know, for that generation of people, it was a new kind of movie. इससे पहले उस किस्म का ह्यूमर, उस किस्म के सीन्स इंडस्ट्री ने नहीं देखे थे, एंड इट एक्चुअली बिकेम अ फोररनर. तो अगर आप देखें उमा भाई, दैट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवी दैट केम was his, the first celebrity to go for this. So, you know, as he was saying that he doesn't do it consciously, but it so happens. So I think when you are on the right path, the correct path, things will fall into place, and that is a prime example of how things happen. आप सब लोग सवाल लेके रखना, हम कम से कम 5 से 10 छोटे सवाल, लंबा नहीं रखना. तुषार जी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, बट छोटे रखना सवाल को. तब तक हम उनसे और कुछ बातें करते हैं. तुषार जी, अगर हम आपके दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें कि आपने वहाँ पढ़ाई करके फिर अमेरिका में ऑटोमोटिव कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, ये बात सुन के ही हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई फिल्म एक्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट भी थे. प्रोफेसर वर्मा साहब बैठे हैं सामने, IIM में प्रोफेसर हैं, संजय वर्मा साहब. ये मेरे से बोल रहे थे कि हम IIM में एक दिन सेशन कराते हैं तुषार कपूर जी का, फाइनेंशियल एनालिस्ट IIM के स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगे. तो एक एक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है इसका संबंध प्रकाश झा जी की बात से भी है कि आप अनलाइक अदर एक्टर्स यू हैव लॉट ऑफ अदर क्वालिटीज एंड स्किल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, थिंकर, नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इनसाइड आउटसाइड मुंबई फिल्म इंडस्ट्री. तो इसके बारे में बताइए. फिर आपने सोचा, क्योंकि आपका फैमिली एंड जितेंद्र साहब को कौन नहीं जानता है, अपने टाइम के सुपरस्टार. तो फिर इसमें आने का जो आपका इवन सिस्टर एकता कपूर इज ए सुपरस्टार इन हर सेल्फ, मॉम, एवरीबडी नोज. तो ये जो कॉन्शियस डिसीजन था कि इसमें तो आना ही पड़ेगा, या फिर सोचे कि नहीं फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं रहना है अब हमें, मतलब व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन इट वाज? हाँ, I was trying, मैं I graduated from the University of Michigan, Ann Arbor में, with a BBA degree with honors. और मुझे मुश्किल से एक जॉब मिल गई. आई थिंक मे बी इन द जॉब इंटरव्यूज उनको पता चल गया कि आई एम गुड एकेडमिकली, बट मे बी बिजनेस इज नॉट इन माई ब्लड. बट आई डोंट अग्री विद दैट टुडे बिकॉज इट इज in my blood. He sold the highest successful OTT film in Lakshmi, which was his first production. Oh, that's so sweet. Yes. So then I worked as a financial analyst in an automotive supplier company in Detroit, and my F1 visa expired, and I got a job just जैसे ही expire हो रहा था मेरा visa. I think you get a 1-year visa. So मेरे graduation से 98 May to 99 May I had a 1-year eligible visa. और वो मुझे job मिली April में in Johnson Controls, which was a much better job as a financial analyst. This was like a more like a, you know, like an extended internship kind of a thing. तो उन्होंने कहा कि we'll sponsor you for H1 visa, लेकिन आपका वीज़ा तो अभी एक्सपायर हो रहा है 1 महीने में, तो हम 5 महीने आपको कैसे रखेंगे यार, हमको अभी चाहिए कोई. तो ये they said, उन्होंने कहा कि मतलब कि हम आपको illegally 5 months के लिए नहीं रख सकते, and apply while you're working, and working illegally, but we'll apply in the meantime. तो that's why it didn't work out, and I decided कि अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं have to struggle and stay here just to do some odd jobs 5 months, and I was getting inclined towards the creative and the world of arts and movies. So I said, let me go back to India then. अगर मेरा job मिल जाती तो मैं रुक जाता उधर, because I was happy in the US. But I came back to India then to pursue a career in films. मुझे ये पता नहीं था कि क्या करना है, acting करनी है, direction करनी है, production करनी है. I just knew that I wanted to do something in movies. So I became an assistant director. So that's how destiny took that turn. You know, it's just unplanned, I guess. I think planning से कुछ होता नहीं है. I think बहुत सारी चीज़ें हम plan करते हैं, लेकिन we keep changing our mind. So life, sometimes it's about your hard work, and it's also about where life takes you. Absolutely, absolutely. In fact, एक बहुत interesting चीज़ है उमा शंकर जी, मैं तुषार से पहले कहा था कि जो भी चीज़ें अभी हम बात कर रहे थे, फोररनर रहे हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, बहुत लकी रहती है. इनकी मैंने बताया जो फर्स्ट प्रोडक्शन थी लक्ष्मी, अक्षय कुमार was in it. वो highest sold OTT movie थी. And it sold highest, and it Viewed views also for an Akshay Kumar Sorry, movie. I'm being it was- boastful. OTT पे आती फिल्में तो आपको boast करना पड़ता है क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है. इनकी जो first movie थी, he won a best debut film Fair Award for that. And इनकी जो first book है, वो भी national bestseller है. So you know, it's a pattern. So it's a pattern, I think, and may it continue.
Thank you so much. But with the journey about the book, journey of the book is more. Best part about this journey is कि ऐसा नहीं है कि फ्राइडे को आपको वर्डिक्ट मिल जाता है और या तो खारिज की जाती है या तो एक्सेप्ट की जाती है. इसकी एक अलग ही जर्नी होती है और आई थिंक बैचलर जैट की जर्नी अभी भी जारी है. अभी 6 और महीने हो जारी गए हैं. रहेगी. Actually, I think why this book is so relevant is because, you know, it is something that serves as an inspiration. 5 years from now, 10 years from now, surrogacy, adoption, बहुत सारे divisions हैं जिसके बारे में अभी भी लोगों को ज़्यादा knowledge नहीं है. Gradually पता लगता है. तो जब आपके पास किसी का first hand experience है, see, that is what makes a difference. He did not know. A phone call, a 2-minute phone call helped him. Now, if anyone wants to know, there is a full-fledged book for you to read and understand. So that is how, you know, with more information coming out, it becomes easier. So ये किताब ऐसी नहीं है जो आप आज पढ़ेंगे और कल irrelevant हो जाएगी. In fact, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. मैं कई सारे authors के साथ डिस्कशन करता हूँ, तो अगर कोई टॉपिकल किताब होती है तो यू नो ऑथर मेरे को बोलता है कि सोहेल भाई इसको आप जल्दी से पिच कर दो क्योंकि और ये किताब ना जल्दी से रिलीज करवाइए क्योंकि अभी ये टॉपिकल है. तो मैं उनको ये बात बोलता हूँ कि आप जिस चीज को एक अच्छी पिच मान रहे हैं वो एक्चुअली एक बहुत खराब पिच है. क्योंकि पब्लिशर बोलेगा कि इस किताब की शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 महीने है. उस 2 महीने के बाद उस किताब की रेलेवेंस रहेगी ही नहीं. तो 2 महीने में आप कितनी किताबें बेच लेंगे. बट इस किताब की शेल्फ लाइफ, इस किताब की रेलेवेंस हमेशा है. बिकॉज एवरीवन हु वांट्स टू नो कैन रीड दिस एंड दैट्स व्हाई इट्स सच अ और ये किताब की एक और खास बात सुहेल जी ने बहुत अच्छी बात बताई. इस किताब की अगर आप लेखन शैली देखेंगे, मैंने पढ़ा है अंग्रेजी की किताबें बहुत कम मुझे बहुत पसंद आती हैं उनकी लेखन शैली की वजह से. अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो ख़त्म ही करेंगे क्योंकि लैंग्वेज इतनी बढ़िया है, इनकी खुद की लिखी हुई है. लैंग्वेज इतनी बढ़िया है, इमोशंस के साथ ऐसे मैच होती है ये कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे. Tuha ji, I really give credit to you for writing this. This is such a wonderful, I'm talking about now writing style. It is such a wonderful narration, creating plots, and then putting these chapters in chronologically. थैंक यू. मुझे तो लगा कि पहले तो लगा कि मैं लॉकडाउन के पहले लिखूंगा क्योंकि तब मिले थे हम और कॉन्ट्रैक्ट भी तब हो रहा था, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया तो सब डिले हो गया और मैंने 2020 के मध्यांतर मतलब कि जुलाई अगस्त में शुरू की ये बुक और 21 जुलाई अगस्त में ख़त्म की. तो लॉकडाउन में लिखी गई है ये पूरी बुक. लेकिन ये पता नहीं था कि लॉकडाउन की वजह से मुझे लास्ट 2 चैप्टर्स मिल जाएंगे टू टॉक अबाउट माई जर्नी एज अ बैचलर डैड इन द लॉकडाउन. क्योंकि अगर नहीं होता तो मैं मतलब इतनी एक्साइटिंग जो क्लाइमैक्स इस बुक की है वो इतनी एक्साइटिंग नहीं होती क्योंकि फिर मैं क्या लिखता, यू नो, आई वुड राइट अबाउट जस्ट द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ बैचलर डैड. But I think the last 2 chapters are about life in those dark days, which were some of those days are very dark, and we had to bring the light from within. So how did my son and I do that in those very interesting months of the lockdown? In fact, what Uma Shankar bhai said is actually a feedback that, you know, a lot of our authors have also given. So our authors who have read your book, they say that the book is very easy to read. It's a light read, you know, you can finish it very quickly and it's very easy to understand. So what I wanted to ask you as an author now is that, you know, it was your first book. So obviously you didn't have any prior experience of writing it. But still you've been able to strike a chord with everyone with the simplicity of how well you're explaining things. So how did you go about that? Was it a conscious decision that I want to make it simple for people to understand? Because कई तरह के राइटर होते हैं. कोई राइटर किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स करके लिखना चाहता है एक्यूमेन दिखाने के लिए या स्टाइल दिखाने के लिए. कुछ लोग उसको सिंपल करना चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके उसके बारे में. सो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? मैंने कभी कोशिश नहीं की आई हैव टू मेक इट वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल. आई गेस आई वाज जस्ट वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि माय राइटिंग इज़ गुड एंड शायद सिंपल हो या मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मुझे मतलब मेरी राइटिंग स्टाइल ही बहुत इज नेवर ओवर कॉन्फिडेंट. ही इज द मोस्ट मुझे हम्बल लगा था कि पर्सन मेरी यू राइटिंग एवर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा फंडू है. मुझे ऐसा लगा था कि मेरी राइटिंग स्टाइल मतलब चौंका देगी लोगों को कि अरे यार हिंदी फिल्म का एक्टर भी लिख सकता है. सो आई वाज एक्चुअली ऑन दैट कि हाँ मैं दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ. बट जब बुक रिलीज हुई तो मुझे बताया गया कि योर राइटिंग स्टाइल इज वेरी सिंपल एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल. सो दैट्स आल्सो अ गुड थिंग आई वुड से. It's very good because while you I was connect with the writing it, I masses. was quite, you know, not that simple and boring in my writing style, quite fluent. But I think कभी-कभी लोग थोड़ा मतलब लिखते हैं तो they want to be very understandable and they want to have
the reader really rack their brains and वाह 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 मतलब ऐसे ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा लेकिन कुछ ज़्यादा ही फंडू होगा वो I didn't want to go in that zone because मुझे लगा फिर वैसा होगा तो फिर लोग समझ नहीं पाएंगे I wanted to reach many people तो मैंने एक फ्रेंड को पढ़ाया भी था एक दो चैप्टर से कहा था कि my writing is not it's not like one of those very intellectual authors you know who write it's almost like poetry they're writing about a biography but it's almost like poetry I said she said that no but then you won't reach beyond the intellectuals you won't reach the normal people who are intelligent who are educated but they don't want to really you know they want to know about your life they don't want to critique your book and look at it from the point of view of how you've written it उनको चाहिए कि वो अच्छा enjoy करे entertain हो emotional हो जाए और थोड़ा मतलब आपकी life के बारे में जान ले so from that perspective I think I thank God it's simple I feel अब हम कुछ सवाल लेते हैं जरा देखते हैं कि लोग तुषार कपूर साहब के बारे में क्या सोचते हैं बहुत सारे वर्मा हाथ साहब उठने वाले हैं Friends. So therefore, don't worry. Your books will sell if more are told. I think first one or two observations. One, I think you are so simple and so humble. Day before yesterday, we went to airport, and there was no parking. So, and I had to somehow impress upon him that he allows me to park. So I said, you know, हम आ जाएं परसों गोलमाल वाले हीरो आएंगे उनको हम लेने आएंगे यार तुम पार्किंग तो करने दो मैंने कहा मूवी देखते हो बोलता हाँ गोलमाल देखी हाँ मैंने कहा एक एक्टर याद है एंड ही एक्टेड लाइक यू एंड ही रिमेंबर्ड यू देयरफॉर आई टेल यू यू आर वेरी पॉपुलर यू नो इट वाज सो इम्प्रेसिव my question to you is now that you have studied management and you must have you know analytics you know maybe financial but you can apply to other fields also maybe project management do you bring in your technical expertise in your movies in your maybe OTT whatever work you do or you intend to bring so that you know you bring in more professionalism in your industry yes definitely जहाँ तक using the management degree is concerned वो जब तक आप काम नहीं करेंगे on the job तो वो use नहीं होगा you know so as an actor of course managing my finances and all that वहाँ तक तो मतलब use होता ही था and then जब आप मतलब when you live in a university and 4 साल आप मतलब घर से बाहर रहे हो या फिर आप एक यूनिवर्सिटी में रहे हो कैंपस में रहे हो तो besides the book knowledge भी आप मतलब लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें because the lifestyle in a university is very real world तो जो हम प्रोटेक्टेड लाइफ जीते हैं हमारी फैमिलीज के साथ यहाँ उससे आपको बाहर लेके जाती है उस यूनिवर्सिटी की लाइफ क्राइसिस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट हाउ टू यू नो हैंडल वर्क प्रेशर यू नो रिलेशनशिप प्रेशर फाइनेंशियल प्रेशर व्हेन यू आर लिविंग अलोन ऑल दोज थिंग्स आर greater education than what you learn in books लेकिन जहाँ तक business education का सवाल है till I became a producer I was not using it so much but after becoming a producer I think those analytical skill about आपके invoices bills budgets negotiation ये सारी चीज़ें like you know profit and loss and taxation all these things came to use when I became a producer absolutely so I was reading a cushy life as an actor and I think I started use so you can never tell when you'll need your education किस point पे आपकी life की मुझे बहुत कहते लोग आपने इतनी पढ़ाई कर ली फिर एक्टर क्यों बने ऐसे कि एक्टर को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्या True. और सिर्फ पढ़ाई मतलब बुक वाली पढ़ाई थोड़ी होती है पढ़ाई मतलब जब आप जाते हैं मतलब लोगों से मिलते हैं आप मार खाते हैं आप स्कूल कॉलेज में जो भी होता है आपके साथ दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग लेसन दैट इज़ योर एजुकेशन एंड बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं जो हम इन एनी प्रोफेशन हमको झेलना पड़ता है दैट्स लाइफ So if you don't have education, you don't have that resource to deal with life. And एक confidence होता है when you have education. मैं नहीं कहता हूँ कि जिन्होंने education नहीं की वो सफल नहीं होंगे. सफलता की एक अलग ही मतलब कि उसका आप शायद आपकी destiny से भी बहुत ज़्यादा तालमेल होता है. It's not just about education or about anything else. But with education, you are able to handle yourself no matter what you go through, all the ups and downs. जो कुछ बहुत सारे सफल लोग भी नहीं कर पाते so that is what education is all about and now that I am helping my father in his business also he has a real estate business उसमें मेरी management degree बहुत काम आती है as a producer बहुत काम आती है then in the I did some liberal arts courses also during the BBA
degree. Before BBA, I did liberal arts for 2 years. So writing abilities also came from there. ना तो आपकी personality को एक all-rounder वाली जो quality हमारी जो एक well-rounded जो quality होनी चाहिए हमारी personalities में वो education से आती है. Take it or leave it, I think it's important to have a good strong foundation. Like I don't think I would be able to write this book on my own if I didn't go to university. So that's very important. That's true. आप लोग हाथ उठाइए, एक और क्वेश्चन पूछना है। एक पीछे से लेते हैं, हिराल साहब एक पीछे से लेते हैं। यस, फिर आपके पास आते हैं। या प्रिया सोगानी, आप good अपना नाम बताइएगा पहले, फिर। Good afternoon. Sure. Hi, good afternoon, Tushar, Umaji, and sir. My name is Advocate Priya Sogani, and I read your interview in Indian Express regarding the research that you did on surrogacy before you adopted this arena to explore parenthood. You mentioned a book, The Laws of Surrogacy. Beyond that, I could not get anything on that. Could you throw a light on the research that you did when you decided to explore this path to, experience parenthood? मैंने कोई रिसर्च नहीं की. मुझे एक फैमिली से मिलाया गया, जैसे कि मैंने कहा प्रकाश जी ने इंट्रोड्यूस किया मुझे, सो आई मेट दैट फैमिली. दे टोल्ड मी वी विल टेक यू टू द डॉक्टर. अच्छा. तो उन्होंने मुझे डॉक्टर फिरोज़ा पारिक के पास वो लेके गए मुझे इन मुंबई. शी इज़ फ्रॉम द जसलोक हॉस्पिटल. पर मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे सारे जो मतलब स्टेप्स हैं जो करने चाहिए हमें फॉर दिस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ सिंगल पेरेंट फॉर योर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड विदाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हाउ इट इज़ लीगली पॉसिबल इन इंडिया and what the laws are, वो उन्होंने मुझे बताए. So I said, doctor, I will follow what you tell me. And she told me that there are things that we have to be very, very confidential about as per the laws of surrogacy. Yes. So she knew about this book called The Laws of Surrogacy, and she knew all the laws very, very well. This is in 2015. So then thereafter I was I was following her instructions, and we did it all very, very legally and as per the laws of the country. एंड मुझे लगता है इसमें भी किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपको सही डॉक्टर मिलना जो लॉज अवॉइड करे, जो आपको मतलब जागरूक करे इन सब चीज़ों के बारे में. देखिए देयर आर 2 steps, the IVF and the surrogacy. She explained everything to me, and of course the science behind it we all know. 9 महीने लगते हैं, all that we all know. So the rest was in God's hands. I think there was divine intervention because just after you experienced it, the laws changed. I know, yeah. उसके बाद I don't know if it's passed in parliament yet. It is passed, I think, in 2021. Okay. Thank you so much. You're welcome. यस, प्लीज। हाँ, देखिए अभी हम लोग सवाल छोटे रखिएगा प्लीज। सेशन में था कि सिनेमा का प्रभाव निगेटिव होता जा रहा है. अभी एक सुबह का कंक्लूजन यही. इधर मैं बचपने में देखता था सिनेमा लीडिंग रोल में था, समाज को दिशा देता था. अब फॉलोअर रोल में, ये से भी मैं सहमत हूँ. तो मेरा ये कहना है कि ये जो फॉलोअर रोल से फिर लीडिंग रोल में आना चाहिए. हमारे देश में पानी की समस्या है, प्लास्टिक की समस्या है, बेरोजगार, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. सिनेमा को फिर, जैसे मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि फिर हमें पानी की समस्या पे बनाइए, लोग पानी बचाएं और समस्या खत्म हो जाए. प्लास्टिक यूज बंद कर दें, समस्या खत्म हो जाए. लीडिंग रोल में आने की जरूरत है. ये डॉक्टर हीरालाल हैं, IAS हैं उत्तर प्रदेश के और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं बांदा के. जी हाँ, आई थिंक जहाँ तक सिनेमा का सवाल है और सिनेमा का रोल आता है समाज को मतलब चेंज करने में या फिर समाज सुधार करने में, तो एंटरटेनमेंट को उसके साथ लाना बहुत ज़रूरी, वरना कोई देखेगा नहीं. क्योंकि सबसे पहले जो सिनेमा का रोल होता है कि हम जो कठिनाइयों से गुजरते हैं, जो हम झेलते हैं, वैसे भी हमारी आम जिंदगी में थोड़े प्रॉब्लम्स कम थोड़ी ना है. तो जब हम अंधेरे में वो जाते हैं सिनेमा घर के अंदर, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ मतलब आप सुकून से अपनी फैमिली या खुद अकेले भी बैठ सके, तो आप चाहेंगे कि आप वो सारी चीज़ें भूल जाए, तब जाके हम अपना काम कर पाएंगे. जब हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है हमारी निजी ज़िंदगी में वो देखने के लिए अगर हम अंदर जाएंगे तो हम प्रॉब्लम से बाहर कब आएंगे? जब हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, फ्राइडे की नाइट को या सैटरडे की नाइट को अगर हम जाकर अपने आप को सुकून से स्ट्रेस फ्री नहीं कर पाएंगे, हम बाहर जाके हम ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे? फ्रस्ट्रेशन में तो आदमी कोई समाज की सेवा कर नहीं सकता ना. तो मुझे लगता है सिनेमा का सबसे पहला रोल है एंटरटेनमेंट. उसके बाद एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप समाज सेवा को जोड़ सके, दैट इज अ ग्रेट फिल्म. यही जो आप कहना चाह रहे हो, यही होना चाहिए. तारे ज़मीन पर. पीछे से पूछिए. If you've seen तारे ज़मीन पर, it's about
Dyslexia. Dyslexia or autistic child. Yeah, dyslexia. Yeah. So such a beautiful film about how you can bring together something that is very important in society with entertainment, with drama. Also, of course, Three Idiots is about education and Swades was electricity conservation. लेकिन आई थिंक शिक्षा का जो रोल है वो सिनेमा से बहुत कहीं ज़्यादा है और जहाँ तक सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव ह्यूमैनिटी, पीस, ऑल दिस हैज़ टू कम हमारे अंदर से आना चाहिए एंड दैट आई थिंक विल कम विद एजुकेशन. And I'm a Buddhism follower. I follow Nichiren Buddhism. I chant Namyo Renge And Kyo. you have I a good think friend who is talking about Buddhism in your book. no, Bam she Bee. she Yeah. got me into it. Okay. In 2015. So I feel that is a path to human revolution जहाँ हम अपने compassionate side को तक पहुँच सकते हैं and we can bring the best version of ourselves out. That is the way we can really change. It's from within. There is so much going on. Wars are happening. I think there's no right answer, but I think something spiritual is needed, something deeper, something that really makes us want to get out of this kalyug that we're in and change the way we think. Very true. So एक बहुत पीछे दैनिक इसका तो भास्कर- मतलब कोई अंत नहीं है इस डिस्कशन का तो कोई अंत नहीं है of course, and if cinema can be a little small part of it, of course that would be great. लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन से निकले हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स को थोड़ा कमाने तो दो, तो थोड़ा मतलब Yes. और लोग मसाला फिल्में का देखने ही जा रहे हैं. लोगों ने बोला, डिसाइड कर लिया कि अभी कुछ ज़्यादा डार्क, ज़्यादा सीरियस नहीं चाहिए. हम थिएटर में जाएंगे अगर आप कुछ लार्जर देन लाइफ दें हमें, और उनके लिए भी तो थोड़ा मतलब हम चाहेंगे ना कि वो अगर थोड़ा बहुत कमा कर अगर एक टिकट खरीदने जाते हैं 150, 200, 300, 400 रुपए की फिल्म के लिए, तो उनको एंटरटेनमेंट देना तो चाहिए ना. थैंक यू. दैनिक भास्कर के एडिटर बैठे हैं पीछे, मिस्टर मुकेश कौशिक जी. या आपका क्या सवाल था? छोटा सवाल प्लीज. बहुत छोटा सा सवाल है उमा शंकर जी. मेरा बहुत निर्दोष सवाल है तुषार जी आपसे कि हर इस धरती पर हर इंसान का ही नहीं बल्कि जानवर तक के बच्चे की एक माँ होती है, लेकिन इन दिस केस क्या आपने अपनी बेबी की आंखों में वो भावनात्मक अधूरापन देखा है कि उसकी माँ नहीं है, पिता है, और या आपने उसका अदृश्य या अनाम माँ से अभी कोई संपर्क जोड़ा हुआ है? मैंने तो कोशिश ये की है कि उसे कभी सिर्फ एक बाप के होने की कभी कमी महसूस ना हो, और मैंने उसे बचपन से ही समझाया है कि हर टाइप की फैमिली अलग होती है. कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ माँ बाप अलग अलग शहरों में रहते हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ माँ बाप कहीं एक व्यक्ति मतलब शायद हमारी दुनिया छोड़ देता है. कभी कभी सिंगल पेरेंट्स उस टाइप की फैमिलीज़ के भी होते हैं, कभी कभी सेपरेट हो जाते हैं फैमिलीज़, कभी कभी बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं. तो और कभी कभी जब सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लगता है, माँ है, बाप है, सब साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर कुछ साथ में है नहीं, वो भी होता है फैमिलीज़ में. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही टाइप की फैमिली होती है या फिर एक कोई परफेक्ट टाइप की फैमिली होती है. सारी फैमिलीज़ की अपनी अपनी कोई उलझने होती हैं, और बच्चों के साथ बात तो हर फैमिली में करनी ही ज़रूरी पड़ती है. तो मैंने उसको ऐसी अपब्रिंगिंग देने की कोशिश की जहाँ उसे किसी कमी की महसूस ना हो, और उसे ये पता चले कि जैसी भी है उसकी फैमिली वैसी ही नॉर्मल है, खुशहाल है, और अलग होते हुए भी कंप्लीट है. On this side. Yes. Mic, please. Someone is coming. Yes. Please introduce yourself in. Hi Tushar, nice meeting you. I was here in the LF yesterday reciting poetry. I just wanted to mention that I am also a single mom, and I have adopted a baby girl about 15 years back. And she is not my biological child. She's from an orphanage in a remote village in Odisha. But I have brought her up in a different way, in the sense that she will not follow the vocation I have followed, the life I have followed. So how are you visualizing yourself as a parent? Are you going to impose your ideas about parenting Thank you. on him, or?
you have your, he will choose his own path. मैं तो इतना ही कहूँगा कि I try to impose some values wherein when he comes home from school, he doesn't throw his shoes all over the house. He doesn't order around कि मुझे ये दो वो दो, because स्कूल में सब खुद करना पड़ता है. तो घर आके वो मतलब मैं थक गया अब मेरा काम करो, वो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा इम्पोज करूँ कि भाई नहीं आपको खुद करना पड़ेगा अपना काम. And you can't behave like गुंडा at home just because you've come back from school. स्कूल 2 साल बाद शुरू हुआ है, अभी 3 बजे तक स्कूल में रहना है, तो घर आके सब माफ, वैसा नहीं चलेगा. What is the vocation you are planning for him? वो उसकी मर्जी. फिलहाल तो I like to introduce sports into him. अभी से मैंने उसको स्विमिंग करा रहा हूँ. Football, he likes football, and I read a lot to him. And टीवी तो देखता है, मतलब कि वो अपने कार्टून्स वार्टून से देखता है, लेकिन वो फिल्मों को आई थिंक उन्होंने अभी तक देखना शुरू किया नहीं है, बॉलीवुड की फिल्में खास. तो आई डोंट नो इफ ही वांट टू गेट इनटू दिस लाइन. आई होप ही इज क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू. जो भी करना है आई होप ही इज क्लियर, चाहे फिल्में करनी है, चाहे उसको कुछ और करना है, कुछ और करना है, आईटी में कुछ करना है या कुछ इन्वेंट करना है. इट्स अप टू हिम, बट ही शुड बी वेरी क्लियर. एक बात और आप सब लोगों को शायद नहीं जानकारी होगी, उसको भाई भी मिल गया है. एकता जी का भी लड़का है जिसका नाम रवि है, और रवि जितेंद्र साहब का रियल नाम है. आप सब लोगों को शायद पता है नहीं पता है, जितेंद्र साहब का जो रियल नाम है वो रवि है, और एकता कपूर जी के बच्चे का नाम भी रवि रखा गया है उनको याद करने के लिए. दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. या प्लीज. कैम छो तुषार सर? हाय. लक्ष्य के साथ आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे? अभी आपने बताया कि अभी तक उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी है, तो आप एज अ पिता उसके साथ कौन सा चलचित्र देखना पसंद करेंगे? आजकल के बच्चे बाप रे, उनको ट्रेलर दिखाना पड़ता है पहले. एंड आई शो, एक बार मैंने उसको बीच में दिखाया था ट्रेलर, एक बहुत सुपर हिट फिल्म का. इट्स टू लाउड, आई कांट वॉच, इट्स टू लाउड एंड इट्स टू मच एक्शन. तो ही डिसाइड्स. अभी कुछ ही में, अभी तो उनके बर्थडे पार्टीज भी ऐसे होते हैं जहाँ फिल्म दिखाई जाती है, पीवीआर का एक स्क्रीन बुक किया जाता है, वो सब होता है. बट लेट्स सी, जो वो कहेगा I'll go for that movie. तो मैं तो उसको लेके गया था पहले लास्ट ईयर एक सुपर हीरो फिल्म के लिए, लेकिन आधी में आई थिंक इट बिकेम टू मच, ही वाज टू यंग. तो अभी मतलब 6 साल का है, तो ही स्टार्टेड वाचिंग वन मूवी एट वंस इन अ व्हाइल. ही वॉचेस वन मूवी. टिल नाउ अभी तक उसने कोई ज़्यादा फिल्में देखी नहीं है. उसकी अपनी एक यूट्यूब वीडियोज़ हैं, वो देखता है सुपर मारियो समथिंग, कंस्ट्रक्शन की वीडियोज़ देखता है, कभी कभी वॉचेस वीडियोज़ अबाउट फार्मिंग. So they have very diverse interests. He watches videos about planets, and so I think good. We just have to expose them as much as we can, and then they decide what they want to watch. So let's see. We haven't gone for a movie together in very long. Tom and Jerry भी देखने गए थे हम लोग. लेकिन इतना तंग किया उसमें थिएटर में, ऊपर नीचे आगे बैठने लग गया, पीछे बैठने लग गया. फिर इंटरवल में बोला आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग होम, बिकॉज 8:30 he goes to sleep ना, so he can't watch a 8 o'clock show also till 10 o'clock. That time it was too much for him. तो आफ्टरनून मूवीज के लिए आई थिंक मेरे को कभी कभी टाइम निकालना पड़ेगा. तो आपको आधी छोड़ के तो नहीं जाना पड़ा ना? हाँ जी, आधी मूवी छोड़ के तो नहीं जाना अभी पड़ा. वो देखता है खुद अपनी. वो मेरी डॉटर बैठी है, उसकी वजह से मैंने कम से कम 8-10 फिल्में आधी देखी केवल. आधे के बाद उसको रुकना नहीं है. बिकॉज आपने उनको उनके टाइप की फिल्म के लिए नहीं लेके गए. That was the reason. That may be the जब वो reason. अपने Yes, फ्रेंड्स yes, के साथ yes. जाएगी फिल्म देखने, चाहे रिसेंटली दे वेंट एंड सॉ आई फॉरगॉट. जब ये उनकी टाइप की फिल्म देखने जाएंगे तब ये आधी पिक्चर में भाग जाएंगे. हाँ, Yes, I think I was wrong. Yes, you're right. So yes, I will take 2 more quick questions because we are almost completing the time. Anyone from this side? Yes, please. I'm coming back to you, Kaveri ji. Quick mics, please. Hi Tushar, hi, I'm Prasoon from Calcutta. Nice to meet you. Nice to meet you. आपसे एक बात पूछना था, like writing a book and making a movie are 2 expressions, creative expressions. How different or how similar what the 2 had been, and where do we see Tushar Kapoor as an author down the line? Yeah, so like in making a movie, as you said, they both are creative tasks. और तो जब मैं किताब भी लिख रहा था तो
उन लॉकडाउन के महीनों में it became like a very good sense of accomplishment for me. And I should not do it in the day. I used to keep myself free in the night, and I planned it in such a way कि मैं ऐसा लगे नहीं कि मैं भाग रहा हूँ, you know, और किताब लिखने के लिए टाइम निकाल रहा हूँ. मैंने ऐसे प्लान किया कि मैं सारा दिन का काम खत्म करूँगा. I mean it's coincidental and it's strange, ironic कि लॉकडाउन के महीनों में as a parent and work from home की वजह से ज़्यादा काम करना पड़ा, because you're donning so many hats, you're becoming a parent. So I didn't get time in the day. तो मैं रात को सब कुछ खत्म करने के बाद I used to give myself 1 to 2 hours to write some notes, and then I used to finish the chapter, then I used to type it. So I set a pattern. तो वो जो संतुष्टि मिलती थी मुझे रात को 11:30-12 बजे जब मैं ख़त्म करता था, I used to feel very happy, feel very, very accomplished. This is a strange, I think it was a blessing for me in those months of the lockdown. I used to feel like I'm really accomplishing something. And then I used to feel so happy when I used to send Sohail the entire chapter. I used to send him the entire chapter. पता नहीं पढ़ता भी था कि नहीं, वो सीधा पेंगुइन को भेज देता था. And he also had become a father then. Yeah. And that used to be like a high for me, once in 15 days. And then my pace increased. Then I started writing twice a day. Then I started writing every day. And जो एक महीना लगता था एक चैप्टर लिखने को, फिर मैंने 15 दिन में चैप्टर लिखना शुरू कर दिया. कभी कभी मैं दिन फ्री होता था तो मैं शुरू करते करते मैं इतना लिखता था 4, 5, 6 घंटे. तो it was to be like great fun. It's so, I don't know when I'll write the next book. I have to be inspired to write the next book. और फिलहाल तो अभी enjoy कर रहा हूँ मैं बैचलर डैड को ही मतलब प्रमोट करने में मतलब बिजी हूँ. और मेरी फिल्म आ रही है दिसंबर में, मारीच, तो उसकी रिलीज इट्स बिन रेडी सिंस अ ईयर. सो आई वाज लुकिंग फॉर द राइट टाइम फॉर थिएटर्स टू ओपन एंड देन टू फाइंड द राइट डेट एटसेट्रा. तो वो एक थ्रिलर है, तो वो भी अभी मुझे काफ़ी मशरूफ रख रही है अभी. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. Maybe Bachelor Dad का sequel. सुहेल एक आपसे I've सवाल already given him 2 ideas. Let's see when he accepts those. चलो यस या पूछिए, क्या पूछे? पहली बात तो लंबी उम्र दे उसको. दूसरी चीज, आपके कुछ लक्षण उस बच्चे में है या नहीं है? जी है बहुत. He is very good in math. ये पूछना था. He is very good in math and I think that has come from me because वो numbers का बहुत शौकीन है, numbers में बहुत रुचि रखता है. And that is because I was very good in math when I was in school. And उसके अलावा उसकी memory बहुत sharp है. He's like my memory, like when I do my lines also in movies, thankfully मुझे कभी मतलब problem नहीं होती. मैं जल्दी से learn कर लेता हूँ, तो फिर काम जल्दी हो जाता है. And Laksh is also like that only. उसको भी याद रहता है सब कुछ. और I think I'm a very sensitive person, so he's also, I think he's got that little sensitive nature from me. कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत बुरी हो जाती, लेकिन मैंने उसको सिखाया है कि it's okay and it's okay to feel bad. It's okay, this what you expected someone to do didn't happen, your friend or whoever, but doesn't mean that we should brood over it or feel too bad over it. I think हमारे ज़माने में ये सब कहा नहीं जाता था. We used to carry forward lots of things, you know, used to put it. But आजकल मैंने उसको, जो मैं उसको परवरिश दे रहा हूँ, मैं उसमें उसको सिखा रहा हूँ कि feel bad, it's okay, but move on and don't spoil your time. Yeah. Absolutely. That's great. सुहेल, मैं आपसे एक सवाल पूछा था. हमारे जो दर्शक है, आप सभी लोगों को बता दूं कि सुहेल माथुर लिटरेरी एजेंट हैं इस बुक के, और ये देश के जाने माने लिटरेरी एजेंट हैं ऑथर्स के लिए. तो एक सवाल आपसे ये है कि तुषार कपूर जैसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके साथ बुक करना कितना आसान या मुश्किल होता है आपको? बहुत अच्छा सवाल है आपका. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत एस्पिरेशनल चीज़ है ये सेलिब्रिटी बुक्स करना. 2 कारण है उसके, क्योंकि एक चीज़ ये है कि पब्लिशर्स बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि लिटरेरी फेस्टिवल्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं. तो वो अच्छा हो जाता है. And everybody wants to meet, you know, because actors or cricketers, celebrities have that, you know, body of work. People love them, respect them, adore them. So for publishers also it becomes an easier sell, right? So वो एक चीज़ है. So prima facie it all looks great. Ideally it should be the easiest thing to do. However, it is not the easiest thing to do. It really depends on the kind of person you're dealing with. Okay. And क्योंकि क्या होता है that कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी फील्ड में किसी जने से बात करें, और मैं एग्जाम्पल्स तो अभी क्या ही दूँ, बट
But you know क्या होता है, everyone has different assumptions about themselves, which may or may not be the same assumptions that a publisher may have about that person, right? और they may be, कई सारे लोग होते हैं, और मैं हमेशा इस बात की सराहना करता हूँ कि तुषार ने खुद लिखी है किताब और मेरे को हमेशा डांटते हैं कि क्यों बोलते रहते हो बार बार, बट ये चीज़ है, कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो किसी को ऑथर के साथ काम करते हैं या किसी गोस्ट राइटर के साथ काम करते हैं, बट जहाँ तक क्रेडिट देने की बात होती है या कुछ इशू होता है वो नहीं करते. It's very important that the person you're working with knows things. And in fact I was telling, और ये question भी उमा भाई ने इसलिए पूछा है क्योंकि कल रात को डिनर पे मैं इनको बता रहा था कि दो ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने कई सारे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन दो ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो मुझे सबसे हम्बल और डाउन टू अर्थ लगे, और वो दोनों इस लिट फेस्ट में थे. कल समीर जी यहाँ पे थे और आज आप यहाँ पर हैं. So, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, आप इस यहाँ पे बैठे हैं इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ. So Thank you. that is how it is. So it seems easy, but it is not, because everyone has their own set of ideas, goals, aspirations, timelines. Everything needs to work out. And I would like to tell you that, you know, the interest this book generated was phenomenal. There were so many publishers, and we got this book commissioned. Concept basis pe hi, and the sample chapter that Tushar wrote was so interesting, so engaging, that, you know, every publisher was interested in it. And actually the two of us had a discussion. I remember, you know, when I'd met him, he told me that his good friend Esha Deol was doing a book with Penguin. And he said that, yeah, Esha is doing a book with Penguin, so let's see if Penguin takes it up. And the day we sent the script out, we got a message from Penguin's editor, and they said that we love it and we'd like to do it. So that is how things manifest. I hope they're happy now. They are very happy, very happy. एक सवाल आप, yeah, fast, quick please. हेलो जेंटलमैन ऑन द डायस, दिस इज़ डॉक्टर कावेरी. सो तुषार, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ऐसी कौन सी सीख है जो आपने अपने पिताजी से सीखी और वही चीज़ आप लक्ष्य को सिखाना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज़ दैट वन लेसन दैट यू वुडंट लाइक लक्ष्य टू नो, कीपिंग द जनरेशन गैप इन माइंड? One lesson that I wouldn't like him to know. या समथिंग, एक सीख जो आप, you know, probably you would like to tell Lakshya in a different way, keeping the current, like, to the generation that he belongs to. He's the next gen. So that you would like to tell him in a very different way. Yeah, sure. Yeah. So I think from my dad, क्या जो मैंने सीखा है, he वो ज़्यादा मतलब he's not a doesn't think too much about his problems. कभी कभी फिल्म अगर नहीं चलती थी भी, he used to want to just be busy with work, and he enjoyed his work. He never took everything so much to heart, which is why I think he handled his successes and failures very well. So that is how I want. I am very I used to, जब मेरा टाइम आया तो मैं हर शॉट को मतलब इतना analyze करता था, and I used to take my work home, and then I used to overthink, and I used to be like, sometimes over the weekend I used to be like, ये शॉट वैसे करना चाहिए था, वो शॉट वैसे करना चाहिए था. और फिर मुझे बाद में realize हुआ कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ था. मैंने अपने आप को मतलब, I think you harm yourself sometimes when you try and overanalyze things and all, because there is a beauty in imperfection also. So that I want to teach my son, which I don't think my dad is like that. So I want him to be cool like my dad in that sense, whatever he chooses to do as his work. Because I was not so cool. I was a little too serious about certain things, and I used to get very bogged down, and then I realized that it's only harming me, because then आगे का जो shot है वो खराब हो जाता है, क्योंकि आप पीछे के बारे में इतना टेंशन ले रहे हो. जो गया सो गया, वो ठीक होके ही गया होगा. उसको इतना मत आप उसके बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि eventually जो होगा अच्छा ही होगा. So that confidence, I think, if he can get from my dad, that would be amazing. Of course, I feel very confident today as an author. Also, I've written a book, but it took me a while to really grow to be a more confident person. While Lakshya, I want him to be confident from the very first day. Yes. Yeah, I think what I'd like to add is that, you know, I was talking about how humble he is, and when you asked this question, my mind just went back. You know, I was watching this award function, and Jitendra sir was called to give the award for the best actor. And over there he said that, अरे बेस्ट एक्टर अवार्ड देने के लिए बुलाया भी तो किसको, उस जने को जिसको कभी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट नहीं किया. इस चीज को बोलने के लिए यू नीड गट्स, यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ योर सेल्फ.
there was no need for him to say that. I mean, probably, you know, and this was a recent awards function, so it wasn't also, it was as old. But अगर इंसान अपने में secure है, तो उसको ये चीजें बोलने में फर्क नहीं आएगी, क्योंकि audience ने उनको प्यार देने में कोई कमी नहीं की. And I think that is what is important. And on a lighter note, when you ask this question कि आपने जितेंद्र सर से क्या सीखा है, तो मैंने सोचा कि यार जितेंद्र सर वाइट जूते पहनते थे, तुषार ने पहने के नहीं, मैंने देखा उन्होंने वाइट जूते ही पहने. लेकिन ये स्वेटर भी थोड़ा वाइट ही है, लेकिन पैंट वाइट नहीं है. अब हमारे ऑडियंस ने भी हमें तुषार जी को बहुत ज़्यादा प्यार किया है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Suhail, you have been wonderful. Sir, it was a pleasure talking to you. Thank you so much. My pleasure being here. I love Ahmedabad. I love Gujarat. Thank you so much. I have a very strong emotional bond for Gujarat, especially because Golmaal would not be Golmaal without Gujarat. The kind of love that people, the audiences here have given that franchise, even Kya Cool Hai Hum, and not just in the cinemas, but even when it comes on TV, I think the TRPs are coming from Gujarat. And the love for comedies that people have here, especially the kind of comedy that's there in Golmaal, I think indebted for a lifetime. Superb. Thank you so much once again for being here. Tusharji will have some interaction with media outside. If we get time, some of you can meet and just have a photograph. But before that, he will have some interaction with media. Thank you very much, all. I hope you all had a wonderful time. But I want to ask Tushar sir, sir, maja aavi? Khub maja aavi? A big round of applause for on that note. And like his movies, we'll keep loving his book too. This book as well as another book. Yeah? A little token of love from AILF and Uma Shankar ji for Tushar sir and Suhail sir. देखिए, ऐसा है कि उमा शंकर भाई को लगता है क्योंकि मुझे लिटरेचर पसंद है इसलिए मैं यहाँ हर साल आता हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसके लिए हर साल आता हूँ.